Yesterday we were discussing about the Le Chatelier principle, and in that Le Chatelier principle we have learned that how to suppress the stress that is applied on a equilibrium system. If there is a dynamic equilibrium is the moving equilibrium. If there is a dynamic equilibrium between reactant and product is established, and you are changing the concentration, pressure, temperature, then that equilibrium will be disturbed. So how the system can maintain that equilibrium, how system can nullify that disturbance which is caused by concentration, pressure, temperature, catalyst, volume. So these all things we are studying in Le Chatelier principle, that what Le Chatelier principle is giving us a knowledge about nullifying the disturbance that is caused by many factors. Yesterday we have discussed about the concentration, pressure, volume, and we moved towards the temperature. Let's start from temperature. How temperature affect the equilibrium condition. Temperature. As you know, there are two types of reactions: exothermic and endothermic. Exothermic reaction in which heat is released. System is releasing heat, and endothermic in which heat is absorbed to proceed a reaction. So if the reaction is exothermic itself, the reaction is exothermic, and you are providing such kind of system a heat, then what will happen? If you are increasing heat or temperature of a exothermic reaction, then the direction of the reaction will be, for example, the reaction is Haber's process, the preparation of ammonia. This is exothermic reaction. This is a exothermic reaction which proceed in a plants in a big industries at 450 degrees Celsius. So if you are increasing the temperature more than this temperature for this exothermic reaction, this is a exothermic reaction. This reaction release heat, delta H is in a minus. So if you are increasing its temperature, its heat, what will happen? Gee, Abir, Zimal, what do you think? What will happen? Alishba, Khushbaht, Aman. 2 to 3 times watch yesterday's lessons video. That's very important. अगर आपको वो नहीं समझ आएगा तो आप फर्दर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे. और पास पेपर्स में आने वाले मोस्टली क्वेश्चंस आपके ये Le Chatelier प्रिंसिपल, जिसमें आपका हैबर और कॉन्टेक्ट प्रोसेस है, इस पर कैसे कंसंट्रेशन और डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली. आपको ये आना चाहिए. अगर कंसंट्रेशन हम एक रिएजेंट की बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बढ़ा दें, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अमोनिया ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर होगी. और अगर मैं अमोनिया रिमूव करना सिस्टम से शुरू कर दूं तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, क्योंकि सिस्टम को लगेगा कि अमोनिया तो खत्म हो रही है, तो रिएक्टेंट जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे और अमोनिया प्रोड्यूस करने लग जाएंगे. इन केस अगर मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम कर दूं तो अमोनिया को ऐसा लगेगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई है, हाइड्रोजन कम हो रहा है, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है इनका. तो अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा रिएक्टेंट्स में. ये तो कंसंट्रेशन का फैक्टर हो गया. प्रेशर का फैक्टर ऐसे होता है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा जहां कम नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 मोल नाइट्रोजन का है, 4 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, तो 4 मोल्स हैं टोटल. और यहाँ पर आपके पास हैं 2 मोल्स, तो कम मोल्स हैं अमोनिया की तरफ. तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका जो सिस्टम है वो कम मोल्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. तो इसका मतलब है फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा. अगर कोई ऐसी इक्वेशन होती जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होता तो ऑब्वियसली फिर बैकवर्ड हो जाता. अगर मैं इस रिएक्शन के लिए प्रेशर डिक्रीज कर दूंगी तो फिर आपका जो रिएक्शन है, जो इक्विलिब्रियम है, वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा.
तो ये बातें हमने डिस्कस की थी। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। एक रिएक्शन पहले से ही एक्सोथर्मिक है, वो हीट के रिलीज करने पर हो रहा है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एंडो है। अगर मैं अमोनिया से बना रही हूँ हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, तो ये एंडो है, तो ये हीट देने पर होगा। और अगर मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया बना रही हूँ तो ये एक्सोथर्मिक है। अगर मैं इस रिएक्शन को दो तरह लिखूं कि नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसिंग अमोनिया, so this is a exothermic reaction। और अगर मैं लिखूं अमोनिया इज प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये दो तरह के रिएक्शन हैं जो कि रिवर्सिबल हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, स्टेबल नहीं होते, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो अगर मैं पहले वाले रिएक्शन में हीट इंक्रीज कर दूंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, अमोनिया नहीं बनेगी। क्योंकि अमोनिया जब बन रही होती है तो सिस्टम अपने अंदर से हीट रिलीज करता है, तो अगर मैं बढ़ा दूंगी तो सिस्टम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो परेशान हो जाएगा, तो वो अमोनिया प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो रिएक्टेंट्स ही बनते रहेंगे बार बार। थोड़ी बहुत अमोनिया बनेगी भी, वो वापस कन्वर्ट होती रहेगी। क्योंकि हीट देने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। हीट अगर मैं दे रही हूँ तो ये रिएक्शन होना चाहिए। हीट देने पर अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में चेंज होता है। सो दिस रिएक्शन इज फेवरेबल, द बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल। तो आप इसमें लिखेंगे अगर ये रिएक्शन है और इफ यू आर इंक्रीजिंग द हीट, सो आप कहेंगे द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड। द इक्विलिब्रियम shift in backward direction. Equilibrium shift in backward direction because this reaction is exothermic। क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन आप लिखेंगे बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। आपका आंसर इतना क्लियर होना चाहिए। अगर आपको 2 लाइंस की स्पेस है तो आपका इतना क्लियर होगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इज इट क्लियर? सबको ये बात क्लियर है? ओके, सिर्फ जिमल का रिस्पॉन्स आ रहा है यस। जी आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कैटलिस्ट की। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि एंडो है, हीट देने पर फॉरवर्ड होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट देने पर रिएक्शन बैकवर्ड होगा। आगे बात करते हैं लास्ट फैक्टर की, दैट इज कैटलिस्ट। आखिरी फैक्टर दैट इज कैटलिस्ट। उसके बाद हम हेबर और कॉन्टेक्ट प्रोसेस को जर्नली जल्दी से देखेंगे और उस पर इन सारे फैक्टर्स को क्विकली डिस्कस करेंगे, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगी, व्हाट्सएप में भी आपके साथ शेयर कर लूंगी, तो वो आपने मुझे सॉल्व करके कल बताने हैं। मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी। कल हमारी क्लास है, कल है, ठीक है। सो कल हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। कैटलिस्ट ना ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, कैटलिस्ट डू नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम, ना ही ये इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट करता है और ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। आपने याद रखना है ये जितने भी फैक्टर्स हैं टेम्परेचर के अलावा, एक्सेप्ट टेम्परेचर, ये आपका कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारे के सारे फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट को तो चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज करते हैं, इस पर इफेक्ट करते हैं, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इफेक्ट नहीं करते। डू नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम का जो आपका कांस्टेंट होता है उस पर इफेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट टेम्परेचर।
याद रखनी है ये बात आपने कि इनमें से कोई भी फैक्टर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ स्टेट्स को चेंज करता है, एक्सेप्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसकी एक वैल्यू कांस्टेंट होती है उसे चेंज करता है। कैटलिस्ट ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट करता है, ना ही इक्विलिब्रियम स्टेट्स पर कोई इफेक्ट करता है। कैटलिस्ट इन दोनों में से किसी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं करता। अब जैसे हेबर्स प्रोसेस है सेम, यही मैं बार बार इसलिए भी रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आगे अब हमने यही पढ़ना है, ठीक है। सो मैं अगर हेबर प्रोसेस की बात कर रही हूँ तो इसमें अगर मैं कैटलिस्ट डालती हूँ जो कि आयरन यूज होता है, फाइनली डिवाइडेड छोटा छोटा छोटे छोटे आयरन के पीसेस जो है वो हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये आयरन अगर मैं सिस्टम में ऐड करूंगी तो ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगी। अमोनिया बन रही होगी, मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से निकाल लूंगी इसको और फिर से अमोनिया बनेगी। आयरन ये रिएक्शन स्पीड अप कर रहा होगा, जल्दी जल्दी अमोनिया प्रोड्यूस करवा रहा होगा, जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम मेंटेन करवा रहा होगा। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में नाइट्रोजन भी सिस्टम में मौजूद है, हाइड्रोजन भी सिस्टम में मौजूद है और अमोनिया भी सिस्टम में मौजूद है। ये तीनों चीजें सिस्टम में मौजूद है, तो मिस हम अमोनिया इसमें से कैसे निकालेंगे? अगर सिस्टम में तीनों चीजें हैं तो अमोनिया को कैसे बाहर निकालेंगे? सिस्टम में तो तीनों चीजें बन रही हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है। तो फिर सिर्फ अमोनिया कैसे हम गेन कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम अमोनिया निकालते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -196, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -253 और आपका जो है अमोनिया इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -33। यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है अमोनिया का। माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का है। तो अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट हम जो है नाइट्रोजन को सेपरेट आउट कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, ये तो होगी कैटलिस्ट की बात। मैंने कहा कैटलिस्ट कुछ नहीं करेगा, ना इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, ना कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट करेगा, बस स्पीड अप रिएक्शन करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस कर देगा और अमोनिया आपको मिलती जाएगी। और खुद कैटलिस्ट अनरिएक्टिव होता है, रिएक्शन के एंड में ये एज इट इज आपको आयरन मिल जाएगा, आयरन के में कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो हो गए सारे के सारे फैक्टर्स। किसी को किसी भी फैक्टर में कोई भी प्रॉब्लम बेटा? आपके एएलपी के, तो आपका एएलपी कह रही हूँ, आपका जो कैम्ब्रिज का सिलेबस है उसमें आपके कुछ हाइड्रेशन के सॉल्ट्स के बारे में भी बात की गई है कि उनके रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन हाइड्रेशन के सॉल्ट की बात करूं जिसमें वाटर हो, H2S CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट है ये बेसिकली, ये हाइड्रेटेड है, ये सॉल्ट हाइड्रेटेड है, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। अगर आप इसे हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये पानी रिमूव हो जाएगा हीट करने पर, तो कॉपर सल्फेट सेपरेट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में और आपके 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट हो जाएंगे। ऐसा ही है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें से सेपरेट आउट होंगे जब आप इसे हीट देंगे। सो दैट मीन दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हाइड्रेशन वाला जो आपके रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन वाले, ये रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट्स रिवर्सिबल होती है। ये जो कॉपर 2 सल्फेट विद 5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लू क्रिस्टल्स। जब आप इसे हीट करते हैं तो ये व्हाइट कलर का आपको
पाउडर मिलता है कॉपर सल्फेट का, व्हाइट कलर का। जब इसमें वाटर होता है तो ये ब्लू कलर का होता है। जब आप इसे हीट कर देते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं तो ये व्हाइट पाउडर बन जाता है। ये तो आपका हीट करने पे है। अगर आप इसको, ये हीट करने पर ये रिएक्शन हो रहा है, अगर आप ये एक्सोथर्मिक समझें कि आप इसको बैकवर्ड ले जा रहे हैं, हीट नहीं दे रहे, इस रिएक्शन को हीट नहीं दे रहे, ये तो एक्सोथर्मिक है इस डायरेक्शन में, नॉट एंडोथर्मिक है, हीट दे रहे हैं। अगर आप इसको बैकवर्ड ले जाएं तो ये होगा एक्सोथर्मिक, यानी कि आप कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट पाउडर था, जो कि व्हाइट कलर का फाइन सा पाउडर था, इसमें अगर मैं पानी डालना शुरू करूं, ये पाउडर अब मेरे पास एक, समझे एक ट्रे में, एक पेट्री डिश में है, मैं इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब से पानी डालना शुरू कर दूं ड्रॉप वाइज, तो जब मैं इसमें ड्रॉप वाइज पानी डालना शुरू करूंगी तो ये व्हाइट कलर का पाउडर जो है वो ब्लू कलर का पाउडर बन जाएगा, ब्लू पाउडर नहीं, ब्लू क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सो ये रिवर्स हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक होता है जब आप हीट नहीं दे रहे, सिर्फ आप पानी डाल रहे हैं, क्योंकि खुद वो एक्सोथर्मिक अपने अंदर से हीट रिलीज करेगा, सिस्टम में से हीट रिलीज होगी और ब्लू क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सो हाइड्रेशन जो होती हैं सॉल्ट्स की या डिहाइड्रेशन होती हैं, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। आप हीट देकर वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल भी सकते हैं और आप जो है वो वाटर को दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, दो चीजें हमारी रह गई हैं, दैट इज हैबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसे जल्दी से देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मिस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हैबर प्रोसेस, सबसे पहले हैबर प्रोसेस के मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हैबर प्रोसेस में हर एग्जांपल में वही दे रही होती हूँ क्योंकि आपको ताकि अच्छे से याद हो जाए कि हैबर प्रोसेस है क्या। सिंपल हैबर प्रोसेस जिसमें मैंने आपको इतने दिन से एक ही रिएक्शन बताया है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन जिसके के 3 मोल्स होंगे और आपको मिल जाएगा अमोनिया। इसकी आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, इस पर सारे फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करेंगे ये पता होना चाहिए। मॉडर्न जो प्लांट्स है ना उसमें जो टेम्परेचर यूज होता है हेबर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए दैट इज 450 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर यूज होता है दैट इज 200 एटीएम। ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, याद कर लीजिए। और जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज आयरन। ये बातें नहीं भूलनी। हैबर प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 450 डिग्री सेल्सियस है, तो प्रेशर चाहिए वो 200 एटीएम है, और जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है, ये बेस्ट कैटलिस्ट है। इसके अलावा आयरन के अलावा आप बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एज अ कैटलिस्ट ले सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स कैटलिस्ट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो ये फाइनली डिवाइडेड आयरन ही है, तो हम ये हैबर प्रोसेस में यूज कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा मैंने आपको सेपरेशन का भी बता दिया कि अगर अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है या मैं मुझे नाइट्रोजन चाहिए या मुझे हाइड्रोजन चाहिए और मैं सेपरेट करना चाहती हूँ तो मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कर लूंगी। तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो इसका जैसे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास -253, और जो आपके पास अमोनिया का है वो -33 है। तो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो मैं जो भी चाहूँ मैं सिस्टम में से निकालती हूँ। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम सिस्टम में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में तीनों चीजें मौजूद हैं आप जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों डायरेक्शंस में जा रहा होता है। अब मैं अगर कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, सारे फैक्टर्स को आप वन बाय वन आप क्लास के बाद भी आराम से बैठकर देखिएगा, इन सारे के सारे रिएक्शंस पर आप देखिएगा कि कैसे रिएक्ट करते हैं फैक्टर्स। इस रिएक्शन पर सारे फैक्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन अगर नाइट्रोजन की बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, अमोनिया ज्यादा बनेगी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। अगर आप अमोनिया रिमूव कर देंगे तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अगर आप नाइट्रोजन या हाइड्रोजन में से किसी की कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्रेशर कैसे मूव करेगा,
कम नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के ज्यादा हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रेशर कम करने पर मूव टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है वॉल्यूम का डिक्रीज, तो वॉल्यूम का डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन, वॉल्यूम का इंक्रीज करने पर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये बातें आपने याद रखनी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो अगर आप टेम्परेचर इस 450 से बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, रिएक्टेंट्स की तरफ चला जाएगा। और अगर आप 450 से कम कर देंगे, यानी कि आप इसमें हीट नहीं दे रहे होंगे, हीट को कम कर देंगे, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। कैटलिस्ट, आप कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो मिस। ओके, आगे चलते हैं। कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस में बेसिकली हम बना रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन वो बनता है पहले हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, उसके बाद बनता है जो बेसिक जो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है वो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने वाला कांटेक्ट प्रोसेस सल्फर ट्राइऑक्साइड वाला ही होता है। सल्फर, इसमें हम बेसिकली बना रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है बच्चों? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर Yes. ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड बेसिकली कांटेक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग तो है सल्फ्यूरिक एसिड की, लेकिन हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए चाहिए होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि मिलता है हमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। और ये वाला जो रिएक्शन है, दिस स्टेप, ये जो स्टेप है जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो हम इस पर सारे फैक्टर्स डिस्कस कर रहे होते हैं। अब देखिए, जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट है उसके ज्यादा मोल्स हैं और जो प्रोडक्ट है उसके कम मोल्स हैं। कंसंट्रेशन की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड। सल्फर ट्राइऑक्साइड सिस्टम से निकाल लोगे, रिमूव कर दोगे, तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन में से किसी की कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड। प्रेशर की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस तरफ जाता है जहां कम मोल्स हो, प्रोडक्ट में कम मोल्स है ना, तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और प्रेशर कम करने पर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर, दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है और बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडो है। सो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी, ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर जो बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है ना, सिस्टम परेशान हुआ है, उसे ठीक करेगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड वापस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि बैकवर्ड ये एंडोथर्मिक है, तो हीट बढ़ाने का मतलब है रिएक्शन मस्ट बी एंडोथर्मिक, तो बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा। कैटलिस्ट जो यूज होता है इसमें, ये तीन चीजें इसमें भी आपने याद रखनी है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। जो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज वेनेडियम, याद रखना है, भूलना नहीं है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड, वेनेडियम 5 ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, इसका फॉर्मूला होता है V2O5। ये चीजें आप नोट किया करें, आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए। V2O5 ये फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम भी हम यूज कर सकते हैं कि छोटा छोटा प्लेटिनम जो है मेटल, उसको हम डिवाइड करके, जैसे आयरन हमने हैबर में किया है, वो यूज कर लें, या हम ये कैटलिस्ट यूज करें सॉलिड फॉर्म में। लेकिन ये वेनेडियम 5 ऑक्साइड जो आपका है, इट्स अ वेरी गुड कैटलिस्ट, और ये हम इसमें यूज कर रहे होते हैं। प्रेशर कितना ले रहे होते हैं और टेम्परेचर कितना ले रहे होते हैं? प्रेशर हम इसमें लेते हैं 1 atm, 1 कैटलिस्ट हो गया V2O5 वेनेडियम 5 ऑक्साइड,
प्रेशर हो गया 1 atm, और जो हम इसमें टेम्परेचर लेते हैं दैट इज सेम, लो टेम्परेचर होता है 550 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर होता है, प्रेशर, और हमने सारे फैक्टर्स देख लिए। ये दोनों प्रोसेस, अगर लिटचेटियर प्रिंसिपल समझ आ गया है तो इन दोनों प्रोसेस पर कैसे इफेक्ट करेंगी सारी चीजें आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। दोनों प्रोसेस क्लियर है?